آغاز اہم خبر سے وزیراعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر آج متحدہ عرب امارات روانہ ہوں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی UAE کے صدر سے ملاقات متوقع ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر خصوصی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیراعظم کی کاروباری شخصیات، مالیاتی اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر آج متحدہ عرب امارات روانہ ہوں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہوگا، جبکہ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور تجارت اور سرمایہ کاری پر خصوصی بات چیت کی جائے گی۔ اور ناظرین، کرگزستان میں پھنسے ہوئے پاکستانی طلبہ کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 600 سے زائد طلبہ دو مختلف پروازوں کے ذریعے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز ذاکر اللہ سے، جو کہ اس وقت ایک طالب علم کے ساتھ موجود ہیں۔ جی ذاکر۔ جی بالکل، بشکیک میں پھنسے ہوئے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر فلائٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ DI خان کے ایک سٹوڈنٹ موجود ہے جو بشکیک میں میڈیکل کا سٹوڈنٹ تھا، اور وہاں پہ جو حالات رونما ہوئے اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے۔ وہاں پر اس ٹائم بہت پینک سچویشن ہے، اسٹوڈنٹ میں بہت خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اور وہاں پر بہت مشکل سینیریو کریٹ ہوا ہوا ہے۔ بچے بہت سخت ڈرے ہوئے ہیں اور ان کو فلائٹس کے بارے میں صحیح کنفرم نہیں کیا جا رہا، لیکن جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے جو ہمارے لیے کیا، میں اس کا تہہ دل سے شکر گزار کرتا ہوں علی امین گنڈا پور صاحب کا۔ جی بالکل، سائم کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں پہ صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ خواتین سٹوڈنٹس بھی ہیں، جو سٹوڈنٹس بھی بشکیک سے یہاں آنا چاہتے ہیں، واپس آنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ سہولیات جو ہے وہ فراہم کریں گے اور ان کو وہاں سے نکالیں گے۔ جی، اور کرغزستان سے پاکستانی طلباء کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ PIA کی پرواز PK 6260 کے ذریعے 205 طلباء کراچی پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی ایئرپورٹ پر طلباء کا استقبال کیا۔ سندھ حکومت بچوں کے والدین اور کرگزستان میں پاکستانی سفارت خانے سے رابطے میں تھی۔ مزید 180 طلباء کرگزستان میں ہیں، جن میں سے 6 زخمی ہیں۔ کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے لیے خصوصی فلائٹ بھیجوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے مزید کیا کہا گیا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ واقعات کے بعد وفاقی حکومت، منسٹری آف فارن افیئرز، یہ سارے ایکٹیو ہوئے، اور ایک کرائسس مینجمنٹ سیل بھی انہوں نے بنایا اور ان بچوں کو واپس لینے کے لیے اقدامات کیے۔ پہلے دن ہی لوگ واپس آنے دوسرے دن سے شروع ہو گئے تھے۔ آج کراچی میں 205 طلباء اور طالبات واپس آئے ہیں۔ یہ پورے سندھ سے ہیں۔ اس سے علاوہ 180 جو مجھے ابھی تک پتہ چلا ہے کہ رہ گئے ہیں اسٹوڈنٹس پیچھے، جن میں 6 انجرڈ بھی ہیں۔ میں نے پتہ کیا وہ مائنر انجریز ہیں، کوئی اتنے میجر نہیں۔ تو وہ 180 کے لیے ہم نے منسٹری آف فارن افیئرز سے کہا ہے کہ حکومت سندھ خرچہ برداشت کرے گی چارٹر فلائٹ کا، کہ ان کو واپس لایا جائے اپنے ملک اور اپنے گھروں تک۔ جو 6 انجرڈ بچے ہیں ان کے علاج کے لیے بھی میں نے کہا ہے کہ وہاں جیسے ہی واپس آتے ہیں تو ہم ان کا چیک اپ کرا کے اور علاج کرائیں گے۔ اور ناظرین، خیبر پختونخوا کے مالی سال 2024-25 کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے بجٹ کا کل حجم 1600 ارب روپے سے زائد رکھا گیا ہے۔ ذرائع محکمہ خزانہ کے مطابق بندوبستی اور قبائلی اضلاع کے ترقیاتی کاموں کے لیے 320 ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں عامر جمیل سے۔ عامر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں خیبر پختونخوا کا جو صوبائی بجٹ ہے وہ کل پیش کیا جائے گا، اور اس حوالے سے تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ کل ہی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کیا گیا صبح 11 بجے، جس میں بجٹ کی منظوری لی جائے گی، اور کل ہی 3 بجے اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا جس میں یہ بجٹ پیش کیا جائے گا۔ اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو 1600 ارب روپے کا یہ بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، جس میں زیادہ تر جو فوکس ہے وہ ترقیاتی کاموں پر، صحت پر، اور جو نوجوانوں کے مسائل اس پر رکھا گیا ہے۔ ترقیاتی کاموں میں 320 ارب روپے جو ہے وہ اس کے لیے مختص کرنے کی تجویز ہے، جبکہ جو ٹیکسز کی اگر ہم بات کریں تو نئے ٹیکسز نہ لگانے پر زیادہ زور دیا جائے گا، اور جو موجودہ ٹیکسز ہیں انہی میں رد و بدل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم صحت کی بات کریں تو صحت کے شعبے میں بھی کافی زیادہ اس بجٹ میں توجہ دی جا رہی ہے۔ خاص طور پر اگر صحت کارڈ کی بات کریں تو 28 ارب روپے جو ہیں وہ اس بجٹ میں صحت کارڈ کے لیے مختص
मुख्तस किए जाएंगे। इसी के साथ साथ BRT के लिए 2.5 अरब रुपए जो है वो उसके लिए भी मुख्तस किए जाएंगे। तहम जो BRT का किराया है वो 5 से 10 रुपए करने की भी तजवीज़ है। इसके साथ साथ नौजवानों के लिए जो बेरोज़गार हैं उनके लिए भी और दीगर जो स्कीमें हैं उनके लिए 10 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए जाएंगे। नए टैक्सेस के बजाय जो मौजूदा टैक्सेस हैं इनमें रद्द-ओ-बदल किया जाएगा। और अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो गुज़िश्ता 2 सालों में प्रॉपर्टी पर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस थे, जिनको कम करके यानी 6% इस वक्त टैक्सेस चल रहे हैं, उन्हें कम करके 3% करने की उनको तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ मादनियात के शोबे में ख़ुसूसी तौर पर टैक्सेस जो हैं वो नाफिज किए जाएंगे। कंपनी एक बनाई जाएगी जिसमें 30% हिस्सा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का होगा और इसी से रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जाएगा। IMF के साथ चूँकि मायदा है तो जो बजट जो है वो 100 अरब रुपए सरप्लस में पेश किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर जो असामियाँ जो हैं उस हवाले से भी इस बजट में बहस होगी, यदि कि गुज़िश्ता 3 सालों से जो असामियाँ खाली हैं उन्हें पुर करने के बजाय ख़त्म करने की तजवीज़ दी जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर जमील। आइंदा माली साल के विफाकी बजट के लिए तजवीज़ को हतमी शक्ल देने की तैयारियां। विफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपए से जायद होगा। दफाई अखराजात 2.1 ट्रिलियन रुपए से जायद रखने का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए FBR को वसूलियों का हदफ 12,004 अरब रुपए तक जाने का इम्कान है। बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर में फाइलों के लेन देन पर टैक्स के आयद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मज़ीद तफसीलात मुदस्सिर अली राना की इस रिपोर्ट में। IMF की डिक्टेशन पर माली साल 2024-25 के विफाकी बजट का खाका तैयार। आइंदा माली साल के लिए बजट के हुजम का इब्तदाई तखमीना 17.5 ट्रिलियन रुपए से जायद, कर्जे और सूद की अदायगियों के लिए 9,700 अरब रुपए मुख्तस। दिफाई अखराजात 2.1 ट्रिलियन रुपए से जायद रखने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के इकदामात भी फाइनेंस बिल में शामिल। बजट खसारा 9,500 अरब रुपए से जायद रहने का तखमीना। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए वर्किंग अभी जारी। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में नॉन टैक्स आमदन का हदफ 2.5 ट्रिलियन रुपए रहने का तखमीना है। स्टेट बैंक का मुनाफा 1100 अरब रुपए और PDL से 1080 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। आइंदा विफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए 1000 अरब रुपए बजट में मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि पेंशन बिल का तखमीना 960 अरब रुपए तक लगाया गया है। आइंदा माली साल में GDP ग्रोथ 3.5% और महंगाई की शरह 11.8% रहने का हदफ मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल में बरामदात और तरसीलात ज़र से 62 अरब डॉलर से जायद का ज़र मुबादला हासिल होने का तखमीना है। बरामदात का हदफ 32.7 अरब डॉलर, दरामदात का तखमीना 58 अरब डॉलर और तरसीलात ज़र का हदफ 30.6 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। हम दुनिया का वाहिद मुल्क हैं जो 24वीं दफ़ा IMF के पास जा चुका है। ये बजाते खुद IMF से ज़्यादा हमारी अपनी कमज़ोरी को ज़ाहिर करती है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि IMF ने भी पास्ट में जितनी भी शराइत लगाई हैं, कंडीशनैलिटीज़ बनाई हैं कि पाकिस्तान के बजट को ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तान के इकनॉमिक रिफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए, वो भी हमने फुलफिल नहीं की हैं। आइंदा बजट में दरामदात पर ड्यूटीज बढ़ाने की तजवीज़ है, जबकि 700 अरब FED और 4,000 अरब रुपए से जायद सेल्स टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया है। बजट में IMF की शर्त पर प्रॉपर्टी सेक्टर में फाइलों के लेन देन पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, जबकि प्लाट्स की खरीदो फरोख्त पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स में इजाफा भी मुतवक्के है। टैक्स नेट बढ़ा दो, ये बहुत ही ईजी सोल्यूशन है। IMF भी यही कहता है, गवर्नमेंट भी यही करती है, बट ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर वाकई हमने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है तो हमें एक ऐसा टैक्स फ्रेंडली सिस्टम बनाना होगा जो लोगों को कॉन्फिडेंस दे कि यार ये जो मेरा टैक्स कलेक्ट हो रहा है ये किसी मकसद के लिए यूज़ होगा। आइंदा माली साल के बजट में सनती शोबे के लिए गैस और तवानाई निर्खों में कमी के लिए पैकेज का ऐलान भी होगा। बजट में सब्सिडीज की मद में 1.3 ट्रिलियन मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है, जिसमें तवानाई शोबे के लिए 900 अरब रुपए तक मुख्तस किए जाने का तखमीना है। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज भी जारी रहेगा। IMF की शराइत के तहत आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज नहीं लेगी। FBR टैक्स रिफंड अदायगियां बर वक्त करने का पाबंद होगा। बरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर भी पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। बजट स्ट्रेटेजी पेपर IMF मिशन की रवानगी के बाद वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। माहिरीन माशियात कहते हैं कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद नागुज़ीर है, वरना बजट आदादो शुमार का घोरक धंधा और किताबों का पलंदा ही साबित होगा। कैमरामैन सहर जलानी के साथ मुदस्सिर अली राना, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।
आगे बढ़ते आपको बताएं कि लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। अस्पतालों में गर्मी से मुतासर होने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा होने लगा है, जबकि अस्पतालों में इंतजामिया की जानिब से खुसूसी इंतजामात भी कर लिए गए हैं। मजीद जानेंगे सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा क्या इंतजामात किए गए हैं? देखें, सूरज की कहर सामानियों का सिलसिला तो बदस्तूर जारी है कि लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके इस वक्त गर्मी की शदीद लहर का सामना कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जब इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी होगी तो उसके असरात सेहत पर भी मुरतब होंगे। और इसी तनाजुर में देखा गया है कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो आने वाले मरीज़ हैं जो गर्मी से मुतासर हैं उनकी तादाद में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और इसमें हीट स्ट्रोक और फिर डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स जो हैं उनकी ज़्यादा तादाद देखने में आ रही है। और इस सिलसिले में महकमा सेहत की तरफ से इक़दाम भी उठाए गए हैं। जैसे इस वक्त हम न्यू हॉस्पिटल मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, और यहाँ पर भी जो गर्मी से मुतासरा मरीज़ हैं उनकी खुसूसी रहनुमाई के लिए काउंटर्स कायम किए गए हैं और डॉक्टरों की खुसूसी ड्यूटियाँ उनको लगाई गई हैं ताकि आने वाले मरीज़ों को बर वक्त अच्छी इमदाद, तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। और कुछ तदाबीर इख्तियार करके हम खुद भी बड़ी हद तक गर्मी से मुतासर होने से बच सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी खुदा न खास्ता हॉस्पिटल्स तक जाना पड़े तो उसके लिए खुसूसी इक़दाम उठाए गए हैं। जी। और मुल्तान में सूरज आग बरसाने लगा। पीडीएमए की जानिब से हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया गया है। इसी सिलसिले में डॉक्टरों ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी जारी की हैं। गर्मी की सूरत हाल के हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ैनब करदेसी से। जी बिल्कुल, मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। सूरज आज सवा नेज़े पर है। दर्जा हरारत की अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम अगर दर्जा हरारत की बात करें तो वो भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और इस टाइम भी मुल्तान का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी की वजह से मसाइल का शिकार हैं। उसके अलावा अगर हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो वो भी 33 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है मजमूई तौर पर 170 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है, 170% रिकॉर्ड किया गया है। और फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से मुल्तान आज पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर है। इस सिलसिले में बार बार शहरियों को यही कहा जा रहा है कि बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। जी। मुनाज़िर मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव की लपेट में आ गए हैं। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि 27 मई तक दिन के दर्जा हरारत में 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली से। जी फौजिया। शदीद गर्मी की लहर ने मुल्क के बेशतर इलाकों को लपेट में ले लिया। दिन के दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि 2 या 2 से ज्यादा दिन बरकरार रहने वाली गैर मामूली गर्म मौसमी सूरत हाल हीट वेव कहलाती है। मुल्क में मौसमियाती तब्दीली के असरात नुमाया हैं। बेहंगम आबादी, जंगलात की कटाई, आलूदगी में इजाफा, गर्मी में इजाफे की बड़ी वजूहात हैं। आपका लैंड यूज एरिया जो ग्रीन एरिया था वो कम हो रहा है। फिर हम बिल्डिंग्स इस किस्म की बना रहे हैं कि जी हमारे शहर जो है हॉरिजॉन्टली फैल रहे हैं, वर्टिकल नहीं फैल रहे। तो इन असरात से भी फिर मटेरियल भी ऐसा होता है, सीमेंट या जो कुछ भी हम लगाते हैं तो वो भी अपनी हीट इमिट करता रहता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और पंजाब में 23 से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में 22 से 27 मई के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दर्जा हरारत है, जो दिन के दर्जा हरारत है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में जो है वो मजीद इजाफा देखने को मिलेगा इस हफ्ते के दौरान। माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी के दौरान हीट एक्सर्शन से बचना निहायत जरूरी है, क्योंकि ये लू लगने का सबब बन सकती है। शहरी गैर जरूरी घर से बाहर हरगिज ना निकलें।